हेलो सोल्जर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 9 के साथ, यूनिट नंबर 1 द सॉलिड स्टेट। और इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर वी आर स्टडिंग अबाउट द solids, and very beginning up to today we have discussed elaborately about the solids, different types of solid, properties of crystalline solids, amorphous solids, packing of these solids, crystalline defects, packing efficiency, voids, different types of void, and along with the calculation. From today we have to discuss about the properties of the solid, and in that the first property we are taking here, the electrical property of the solids. On the basis of conductivity range, electrical conductivity range, the solids are broadly classified into three categories. First one is the conductor, another is semiconductor, and last one is insulator. What is the conductor? From very beginning we have studied from very beginning up to the 8th class, from 8th class we are studying about the conductor, insulator, etc. यदि सोल्जर्स हम अपने प्रीवियस नॉलेज को रिफ्रेश करें तो कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी का आसानी से क्या करें? कंडक्शन कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो कंडक्टिविटी को यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट न करें एट एनी कंडीशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। लेकिन नाउ इन द 12th क्लास it is not the standard definition of the conductor or insulator. So on the basis of conductivity, electrical conductivity range, the conductor is what? A such kind of the material which conductivity ranges from 10 to the power 7 to 10 to the power 4 per ohm per meter. That type of material, that type of solids are called as conductor. What is insulator? A such type of the material which conductivity ranges from 10 to the power minus 10 to 10 to the power minus 20 per ohm per meter is called as insulator. But meanwhile, what is the semiconductor? What is the semiconductor? So semi का मतलब क्या होता है? आधा, यानी a such kind of the material which conductivity range falls between conductor and insulator is called as semiconductor, my dear soldier। यानी सेमीकंडक्टर क्या है? एक ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी रेंज 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर माइनस 6 पर ओम पर मीटर रेंज करे, वेरी करे, अ सच काइंड ऑफ मटेरियल विल बी कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेमोराइज what is the conductor, what is the semiconductor, what is the insulator on the basis of conductivity range. Then this conductor is divided into two main categories. First one, it is metallic conductor. Second is electrolytic conductor. Metallic conductor, all metals which conduct the electricity, which conduct the charge in a very appropriate manner, that is called as the metallic conductor. And very big example: silver, gold, aluminium, copper, iron, etc., etc. These will be the example of the metallic conductor. In case of electrolytic conductor, example it will be acids, bases, salts. Acids, bases and salts.
दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में कर सके, यानी जो कि पिघलने के बाद या फिर उनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए। डिसॉल्व होने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, डिस्प्लिट हो जाते हैं, एंड नाउ दे विल एबल टू बी कंडक्ट द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनटू द बल्क मटेरियल, एंड such kind of the substances will called as the electrolytic conductor. Into the board examination, into the different competitive examination, several times the question has been asked. कैसे पूछा गया है कि in case of metallic conductor what will be the carrier of charge? So carrier of charge it will be electron. इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कंडक्टर, मेटल के अंदर अ प्लेंटी ह्यूज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल विच जस्ट एबल टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हेन दे विल एसोसिएट ज्वाइंड विथ एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का सोल्यूशन बनाते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किससे मिल करके बने होते हैं? आयन से मिल करके बने होते हैं। दैट इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट इनटू द सोल्यूशन इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयन इनटू द अपोजिट आयन, cation as well as anion, and this cation or anion will able to carry the charge from one place to another place into the substances, into the bulk material, into the electrolytic substance. These things again will just discuss in a very broad manner into the electrochemistry chapter, which will be the I think that third chapter, electrochemistry solution. Electrochemistry, that is the solution, then chemical kinetics, electrochemistry, might be third or fourth chapter will be of that. So these things will study into the electrochemistry chapter in a very detailed way. In this case of metallic conductor there is no transfer of mass. metallic conductor में mass का transfer नहीं होता है, यानी only the carrier is just carrier or electron, and that electron doesn't have the mass, and that's why there will not be transfer of the mass in the case of the metallic conductor. While in case of the electrolytic conductor, mass will be transferred. Why? Because these ions will be a carrier, और कैरियर आयन कैरियर होने की वजह से, चूंकि आयन क्या है, इट विल कंटेन्स द न्यूक्लियस। आयंस क्या हैं? दैट इज द पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग द चार्ज, दे विल हैव द मास, एंड दैट्स व्हाई इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ मास। और सच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रिलेटेड टू दिस topic, differences between metallic and electrolytic conductor. Again this will discuss into the electrochemistry chapter. Now semiconductor, the conductor which conductivity ranges from 10 to the power 4 to 10 to the power minus 6 per ohm per meter will called as the semiconductor, and this semiconductor will be divided into two. First it is intrinsic conductor. Intrinsic conductor assists the material which have inherent property, inbuilt property to conduct the charge into the substances, through the substances. It is called as the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductors example will be silicon as well as germanium. Silicon and germanium. Intrinsic semiconductor substances especially belong from the 4th A or 14 group of the element into the periodic table. याद रखिए my soldiers, the member of the 14 group of element, that is what? Carbon, silicon, germanium, tin and lead. इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको मेमोराइज कराएंगे कैसे किसी भी ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग याद रख सकते हैं। बहुत ही आसान कोटेशन है, लेकिन यहाँ पे 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इसको याद रखने के लिए याद रखिए सोल्जर्स, कहें सीता जी सुनो प्रभु।
कहें सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. These 14 group of element will have the 4 electron into their outermost shell, and this 4 electron into that outermost shell will be free in a very few number, and that free electron will be able to carry the charge. 14 ग्रुप के एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के रेंज में आते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं. एग्जाम्पल क्या बने, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. दूसरा हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी रेंज को क्या कर दें हम लोग, बढ़ा दें, जिनकी कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कर दें, इंक्रीज कर दें. कैसे इंक्रीज कर दें, बाय एडिंग द एक्सटर्नल मटेरियल इनटू द particular intrinsic semiconductor, and such type of semiconductor, developed semiconductor from the intrinsic semiconductor is called as extrinsic semiconductor. This extrinsic semiconductor will be of the two type, that is the N type of semiconductor and P type of semiconductor. N type and P type of semiconductor. We'll discuss how this semiconductor will develop, extrinsic especially N and P type of semiconductor, into the next slide. But here insulator are substances which conductivity ranges will be between the 10 to power minus 10 to 10 power minus 20 per ohm per meter. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्या, PGR, प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे हाउ दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल डेवलप फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तब तक आप इसका वीडियो पॉज करें, फेयर नोट बनाएं, एंड देन विल रिज्यूम द वीडियो. नाउ डियर सोल्जर्स, विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ दीज डिफरेंट सॉलिड्स. यदि आपसे कोई पूछे कि जो कंडक्टर है वाई दे जस्ट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी अप्रोप्रिएटली, तो बिगनिंग स्टेज पे, बिगनिंग नॉलेज के बेस पे हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यदि हम इंसुलेटर की बात करें तो हम कहते हैं देयर इज नो एनी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन नाउ इन मॉडर्न एरेना, नाउ इन मॉडर्न वे, मॉडर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार we are just explaining the conductivity of these different solids on the basis of band theory. On the basis of band theory, which one is important? What is the band theory? तो इसके लिए ये कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो एटम है, किसी भी मटेरियल का जो एक एटम है, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा. ऑल दिस अरेंजमेंट वी हैव स्टडीड इनटू द 11th क्लास प्रॉपरली. तो किसी भी पर्टिकुलर जो मटेरियल का एटम है, उस एटम के अंदर 3 एनर्जी गैप्स होते हैं. देयर आर 3 एनर्जी गैप्स. ये इसी एनर्जी गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं. यानी देयर विल बी 3 एनर्जी बैंड्स और द 3 एनर्जी गैप्स इनटू द एटम ऑफ एनी मटेरियल. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बैलेंस बैंड और बैलेंस बैंड और बैलेंस गैप, फॉरबिडन जोन और फॉरबिडन गैप, एंड अनदर इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड. ये क्या हैं, एनर्जी के डिफरेंट लेवल हैं. जनरली एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो किस स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है. वो किस स्टेट, किस एनर्जी गैप में रहता है, किस बैंड में रहता है, दैट इज बैलेंसी बैंड कह सकते हैं या बैलेंस एनर्जी गैप कह सकते हैं. और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस गैप में रहेगा, बैलेंस बैंड में रहेगा, वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता है. होता क्या है, जब पर्टिकुलर मटेरियल को हम लोग किसी एक्सटर्नल सोर्स से अटैच करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से एनर्जी को प्राप्त करके, एनर्जी को एक्वायर करके पहुंच जाता है किसमें, कंडक्शन बैंड में. और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचता है
तब जाकर कोई भी मटेरियल कंडक्टर बनता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। वो इलेक्ट्रॉन वो पर्टिकुलर कैरियर चार्ज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो याद रखिए बैंड थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी मटेरियल के एटम में जो है 3 गैप होते हैं, बैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप एंड कंडक्शन बैंड। और किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ये इसेंशियल नितांत आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन किस गैप में हो, किस बैंड में हो, किस एरिया में हो, कंडक्शन बैंड में हो। दिस इज कॉल्ड एज द बैंड थ्योरी। अब इस बेस पे क्या होता है, इन कंडक्टर क्या होगा कि जो ये फॉरबिडन गैप है या तो ये अब्सेंट होता है या तो फिर ओवरलैप होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंडक्टर के केस में फॉरबिडन गैप अब्सेंट होगा या तो फिर बहुत ही पतला होगा, ओवरलैप्ड होगा, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई करने पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ये जो फॉरबिडन गैप होता है ये स्मॉल होता है, थोड़ा ज़्यादा गैप होता है एज कंपेयर टू द मेटालिक कंडक्टर या कंडक्टर के अपेक्षा। और जब हम इस सेमीकंडक्टर को एक्सटर्नल रिसोर्सेज से जोड़ते हैं तो दिस इलेक्ट्रॉन टेक्स द मच मोर एनर्जी फ्रॉम फॉर रीचिंग इनटू द कंडक्शन बैंड फ्रॉम बैलेंस बैंड। यानी इस सेमीकंडक्टर के बीच में गैप ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है फ्रॉम द बैलेंसी बैंड इन कंपेरिजन टू कंडक्टर। बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। इन केस ऑफ इंसुलेटर के अंदर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और यदि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। ये मॉडर्न एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, एटम के अंदर अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं? बैलेंस बैंड के अंदर हैं, लेकिन ये फॉरबिडन गैप इतना ज़्यादा लार्ज होता है कि जितना भी यदि हम इसको एनर्जी दें, इस इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस बैंड से कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर सोल्जर? यस। एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप लार्ज होने की वजह से इंसुलेटर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर आर नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इवन बाय ज्वाइनिंग विथ एक्सटर्नल सोर्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली थ्योरी, अगले स्लाइड पे हम लोग पहुंचेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Now my dear soldiers, we have to just discuss about the types of extrinsic semiconductor and their development. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोगों ने देखा है कि ऐसे एलिमेंट जो 14 ग्रुप के 4th A ग्रुप के, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 4th A ग्रुप या फिर 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल बनेगा आपका कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तरीके से एक्ट करते हैं। क्यों एक्ट करते हैं? क्योंकि देखिए इनके आउटर मोस्ट सेल में हमने एक सिलिकॉन एटम को जो है कि लेकर के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो सिलिकॉन जो है 4 एटम जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और किस प्रकार का बॉन्ड बनाएंगे? दे विल फॉर्म द
कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड इस कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शेयर्ड होते हैं, और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 कोवेलेंट बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड जो है टूटे हुए स्प्लिटेड कंडीशन में, टूटी हुई कंडीशन में मौजूद होता है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है 10⁻6 शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड में से, और जिसकी वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी बहुत ही स्लो होती है, कम होती है, लो होती है, और इसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में रखते हैं। यानी शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने से इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है मटेरियल के अंदर कम होता है, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेवलप्ड किए जाते हैं, उनकी जो है कंडक्टिविटी को बढ़ाई जाती है बाय द डोपिंग मेथड। डोपिंग क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ द सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल सबस्टांसेस impurity into the particular intrinsic semiconductor like the silicon or germanium. So doping is addition method of the impurity into the intrinsic semiconductor, and by addition of this one, by the doping, the conductivity of intrinsic semiconductor increases. अब इस जस्ट एडिशन डोपिंग के बाद जो है 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट होता है। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री आल्सो। तो आइए समझते हैं कैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट होता है, कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट होता है। तो इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, जैसे कि सिलिकॉन है, इसके अंदर हम इम्प्यूरिटी ऐड कर दें बिलोंगिंग टू द 5th A और 15 A ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और द बिस्मथ। यदि इस प्रकार के एलिमेंट को ऐड कर दें किसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा माय डियर सोल्जर कि इस पर्टिकुलर, देखिए ध्यान से, यदि इनकी वैलेंसी कितनी है सिलिकॉन की, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यदि हमने इसमें सपोज दैट 15 ग्रुप से रिलेटेड आर्सेनिक को ऐड कर दिया, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा एक सिलिकॉन को आर्सेनिक। चूंकि आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये सिलिकॉन एटम के साथ क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी इस प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना हुआ कंडक्टर क्या कहलाएगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहने का क्या मतलब है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है किसकी वजह से इंक्रीज कर रही है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द नेगेटिव पार्ट, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, hence this type of semiconductor, extrinsic semiconductor will called as the n type of semiconductor। जबकि यदि p टाइप की सेमीकंडक्टर की बात करें, how it can be developed, तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट को डोप करते हैं, मिलाते हैं, जिसके वैलेंसी कितनी हो, 3 हो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, तो क्या होगा कि देखिए यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। टोटल इस एलिमेंट की वैलेंसी यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी, होल हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरीके से डेवलप्ड होने वाला सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कहलाएगा, पी टाइप ऑफ सेमी
कंडक्टर। तो हम लोगों ने क्या सीखा माय डियर सोल्जर, हाउ द एन टाइप एज वेल एज द पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर कैन बी डेवलप्ड। याद रखिए ध्यान से, यदि हम नाइट्रोजन फैमिली, N फॉर नाइट्रोजन और N फॉर एन टाइप, तो यदि हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो डेवलप होने वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। जबकि यदि हम लोग बोरॉन फैमिली से रिलेटेड कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, डोप करते हैं, तो डेवलप होने वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा। इसके पहले लेक्चर में क्रिस्टलाइन डिफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा डिटेल वे में। एक मेरे सोल्जर ने कमेंट करके लिखा कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट यही है बेटा, यही है बाबू। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के अंदर क्या है, देखिए कि पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिक हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। सो सच टाइप ऑफ द डिफेक्ट इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड विल कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इसके पहले वाला जो डिफेक्ट था उसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉइंट डिफेक्ट। देयर वाज द इरेगुलरिटी इनटू द एटम, इनटू द मॉलिक्यूल, इनटू द आयन, इन द लैटिस पॉइंट और ऑन द लैटिस पॉइंट। तो that was the point defect and it is here the electronic defect। तो इसके साथ आप लोग जो है NCERT पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और यदि कोई डाउट हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988 पे कांटेक्ट करते रहिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।